नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्र को संदेश देंगे। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थोड़ी ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो कल गणतंत्र दिवस है और अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। सीधे आपको वही सुनवाते हैं। Fellow citizens, on the eve of the 68th Republic Day of our nation, I extend warm greetings to all of you in India and abroad. I convey my special greetings to members of our armed forces, paramilitary forces, and internal security forces. I pay my tribute to the brave soldiers and security personnel who made the supreme sacrifice of their lives in defending India's territorial integrity and maintaining law and order. Brothers and sisters, when India attained freedom on 15th August 1947, we did not have an instrument of governance of our own. We waited till 26 January 1950, when the Indian people gave to themselves a constitution to secure for all its citizens justice, liberty, equality, and gender and economic equity. We promised to promote fraternity, dignity of the individual, and unity and integrity of the nation. On that day, we became the largest democracy of the world. The faith and commitment of people gave life to our Constitution, and our founding fathers wisely and carefully steered the new nation past its troubles of being a poor economy with huge regional imbalances and a vast citizenry deprived of even basic necessities. It goes to the credit of the strong institutions of democracy built by our founders that for the last 6.5 decades, Indian democracy has been an oasis of stability in the region troubled by unrest. From a population of 360 million in 1951, we are now a 1.3 billion strong nation. Even then, our per capita income has shown a tenfold increase. Poverty ratio has declined by 2/3. Average life expectancy has more than doubled, and literacy rate has shown a fourfold increase. We are today the fastest growing amongst the major economies of the world. We are the second largest reservoir of scientific and technical manpower, the third largest army, the sixth member of the nuclear club, the sixth member in the race for space, and the 10th largest industrial power. From a net
food grains importing country, India is now a leading exporter of food commodities. The journey so far has been eventful, sometimes painful, but most of the times exhilarating. What has brought us thus far will take us further ahead, but we will have to learn to adjust ourselves quickly and deftly to the winds of change. Evolutionary and incremental growth will have to accommodate rapid disruptions brought in by advances of science and technology. Innovation, more so inclusive innovation, will have to become a way of life. Education will have to keep pace with technology. In the race between man and machine, the winner will have to be job generation. The velocity of technology adoption will call for a workforce that is willing to learn and adapt. Our education system will have to join hands with innovation to prepare our youth for lifelong learning. Fellow citizens, our economy has been performing well despite the challenging global economic conditions. In the first half of 2016-17, it grew at a rate of 7.2%, same as that last year, showing sustained recovery. We are firmly on the path of fiscal consolidation and our inflation level is within comfort zone. Though our exports are yet to pick up, we have managed a stable external sector with sizable foreign exchange reserves. Demonetization, while immobilizing black money and fighting corruption, may have led to temporary slowdown of economic activity. As more and more transactions become cashless, it will improve the transparency of the economy. तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश को संबोधित कर रहे थे। कल 68वां गणतंत्र दिवस देश मनाने जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के चुनावी दंगल में सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से प्रकाश सिंह बादल पर पंजाब को बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो सुखबीर सिंह बादल ने विकास की फहरिस्त गिनवा दी। सुखबीर सिंह बादल का दावा है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब को विकास की कई सौगातें दी हैं, जबकि कांग्रेस ने अकाली सरकार पर पंजाब को बर्बाद करने का दावा कर रही है। 2017 की चुनावी जंग में एक दूसरे से पार पाने की होड़ में सियासी दल एक दूसरे पर खूब वार पलटवार कर रहे हैं। बेनती करूंगा। वादों, दावों और आरोपों की बारिश जमकर हो रही है। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस और अकाली दल के राज की तुलना करते हुए सूबे के विकास का श्रेय सरदार प्रकाश सिंह बादल को दिया। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह की दलील है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल के राज में पंजाब ने अपनी चमक पूरी तरह खो दी है। 45 साल कांग्रेस का राज रहा, 45 साल, तकरीबन 22 तो 23 साल श्रोमणी अकाली दल का राज। तुसी पंजाब विच किते भी चले जाओ, कुछ भी चीज बड़ी देखो, उदों ही बड़ी होगी जो मुख्यमंत्री बादल साहब। जे तुसी थीन डैम जिहड़ा बिजली दिंदा आपां नूं सब तो वड्डा डैम बादल साहब ने बनाया। मुख्यमंत्री कोई बनता है चाहे इस सूबे या किसी सूबे में, उन्होंने लोग दिंदे ने ताकत और प्यार नाल दिंदे ने ताकत के उस सूबे का और उस सूबे के लोगों का तुसी उन्हां दी देखभाल करो। लेकिन इस बंदे ने हालात ये बना देते पंजाब से कि सब कुछ ही तबाह कर दी और 1 नंबर का सूबा सानू 19 नंबर तक पहुंचाता जिथे आर्थिक तौर पर। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब एयरपोर्ट निर्माण, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने और बिजली सरप्लस सूबा बनाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री बादल की जमकर तारीफ की, जबकि कैप्टन का आरोप है कि गलत नीतियों के चलते पंजाबियों ने 1 लाख करोड़ का निवेश सूबे में करने के बजाय दूसरे राज्यों में किया।
ਅੱਜ ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 10 ਸਾਲ ਖਰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ सरकार की रेवेन्यू बढ़ती और सारे बच्चों को नौकरी बन जाती। सुखबीर सिंह बादल पंजाब में हुए खर्च राशि का ब्यौरा दे रहे हैं जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में हुए नुकसान के आंकड़े पेश कर रहे हैं। खरड़ से जगतार भुल्लर के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, शाहकोट। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर बड़ा सियासी हमला किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सीएए की जो रिपोर्ट सामने आई है 1984 मामलों को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? 1980 में मेरी ड्यूटी लगी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई कि संत लौंगोवाल और जनरल सिंह भिंडरावाले से मैं बात करूं और 84 फरवरी तक मैं करता रहा 4 साल और मैं देखा जब भी कोई हल निकले का टाइम था बादल सैबोटाज कर देता था। ये चौथा था, ये इसको मालूम था कि मैं गवर्नमेंट नहीं बना सकूंगा जब तक कोई हालात ना बने। फिर जब अखीर आ गई इसको संत लौंगोवाल ने इनको बुलाया 5 तारीख को कि उधर आए, इनको बनाना को टोड़ा को वो दोनों पहुंच गए। ये चला गया अपने फार्म यूपी में क्योंकि उसको मालूम था कि इसने कह दिया कि साढ़े हमारी बात की बात नहीं अब और आप जो गवर्नमेंट ने फैसला उठा जो करना जो करे। इसने खुली छुट्टी दी थी और इसने ही अकाल तख्त में खड़ के इसने अरदास की थी कि जब टैंक आएंगे मेरी छाती के ऊपर, बुज़दिल आदमी है बिल्कुल, और चला गया वहाँ छोड़ के। आपके समय हर बार जो है 84 का जिन निकल कर बाहर आता है, कांग्रेस को घेरा जाता है, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है इसके बाद फिर तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो लोग हैं जिन्होंने किया है चाहे कांग्रेस में हो उनको कानून के सामने आना पड़ेगा। अब देखो इतने साल कानून को भी कितने साल हो गए, अब तो पकड़ के सबको जिन्होंने कत्लेआम किया था दिल्ली में उनको अंदर करना चाहिए था सबको। बीच ही RSS में अब तुगलक रोड उसमें जाओ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में 42 RSS के आदमियों का नाम है, कहीं कांग्रेस वाले के आदमियों के नाम है, पकड़ के अंदर करो। बट कराने वाला कौन है जिसने पंजाब के माहौल बिगाड़ा है? ये है प्रकाश सिंह बादल। साफ तौर पर सीएए की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस जो है अब अकाली दल को घेरने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन मोहित के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन पर दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। अकाली दल और कांग्रेस ने मिलकर आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होने के दावे खूब कर रही है, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल लगातार लोगों के बीच जाकर उसकी पोल खोलने में जुटे हैं। सरदार सुखबीर बादल की माने तो केजरीवाल से बड़ा ठग कोई नहीं हो सकता, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नशे के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के तमाम वादों को खोखला करार दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ना भावे आम आदमी है, सही मिलते ठग्गां दी पार्टी है। सब तो बड़ा ठग जे अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि जो कहता है ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ 2.5 ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 200 दुकाना सी शराब दिया, हुण ने 399 दुकाना शराब दिया। उधर अमृतसर में कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मानसा में हरसिमरत कौर बादल ने केजरीवाल को निशाने पर लिया। दोनों ही नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। मैं जानता हूं कि अवसरवादी लोग भी आज पंजाब में आए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली में कई सपने सजाए थे, फ्री बिजली, फ्री पानी का संकल्प लिया था, आज उसका नामो निशान दिल्ली में नहीं। कहा था कि हम एक स्वच्छ सरकार देंगे,
आधे इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਕੀਕਤ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अकाली दल की माने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर पंजाब की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। खरड़ से जगतार भुल्लर, शाहकोट से पंकज कपाही और अमृतसर से राजन गोसाई के साथ बलदेव शर्मा, जी मीडिया। चुनावी मौसम में कांग्रेस और अकाली बीजेपी में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अकाली बीजेपी गठबंधन पर सवाल उठा रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने अकाली बीजेपी गठबंधन को अधर्म का गठबंधन करार दिया है। कांग्रेस ने अकाली बीजेपी गठबंधन को निशाने पर लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि गुरु नगरी अमृतसर और पंजाब जैसे पवित्र राज्य में अधर्म का गठबंधन राज कर रहा है, जिसे सूबे की जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए। जिस पर बीजेपी नेता तरुण चुग कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र करते हुए उसे अपना कुनबा संभालने का मशवरा दे रही है। बीजेपी ने कैप्टन और सिद्धू के बीच के मतभेद की बात कही है। एक धार्मिक शहर में, एक धार्मिक राज्य में एक अधर्म का गठबंधन शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच में, एन अनहोली अलायंस इन अ होली सिटी एंड अ होली स्टेट। ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਸਮੇਟੇ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਹਰਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। उधर पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी का दावा है कि सिद्धू और कैप्टन मिलकर पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश में जुटे हैं और दोनों के बीच मतभेद वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, मुझे सिद्धू जी ने बताया कि कुछ पोस्टर लगे हैं और उन्होंने खुद ही बयान दे दिया कि उनके विरोधियों ने ये पोस्टर लगाए हैं। सिद्धू जी ने बात अपनी स्पष्ट कर दी है कि वो कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में एज अ सोल्जर काम करने आए हैं। हम उनका स्वागत भी करते हैं और मान सम्मान भी करते हैं। गठबंधन को निशाने पर लेने वाली कांग्रेस को बीजेपी ने नसीहत दी है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ललित शर्मा, जी मीडिया। पंजाब में एक बार फिर से नशे पर सियासत गरमाने लगी है। सभी सियासी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि अकाली राज में पंजाब में बेरोजगारी और नशा दोनों ही बड़े हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से बहुत पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बढ़ते नशे का हवाला देकर अकाली बीजेपी सरकार को घेरना शुरू किया था। आज भी कांग्रेस यही बताने में जुटी है कि सूबे का युवा ड्रग्स की जकड़ में है, जिसकी जिम्मेदार अकाली सरकार है। इस बार आरोप कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाए, जिसका जवाब बीजेपी उम्मीदवार तरुण चुग ने दिया। उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार करते हुए सिंधिया पर तंज कसा है। तो जहां बेरोजगारी है, जहां किसानों में त्राही त्राही है, वहां एक नशा और ड्रग्स का माहौल भी पूरे पंजाब में इस शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने पूरी तरह से प्रायोजित तरीके से यहां बैठा दिया और सरकार के नुमाइंदे भी इसमें मिले हुए हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਧੁਰਾ ਸਿੰਧਿਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ अपने वर्कर्स ਨੂੰ देखा हुए। कांग्रेस सांसद सिंधिया की माने तो 10 साल तक अकाली बीजेपी सरकार को किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं सूझी, जबकि बीजेपी ने पूर्व कैप्टन सरकार के कार्यकाल का हवाला देते हुए निशाना साधा। साथ ही कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने का प्लान तैयार है। पिछले 10 साल से किसान की ऋण माफी की योजना के बारे में क्यों नहीं सोचा इन्होंने? और अगर किसानों के ऋण के माफी के बारे में किसी ने सोचा है तो केवल कांग्रेस की सरकार ने सोचा है, जो 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की योजना कांग्रेस की सरकार लेके आई थी। आज किसान कर्ज में डूबा है। किसान ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਬਲ ਵੰਡੇ। ਜੋਤੀਰਾਜ ਸਿੰਧਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ
सिंधिया साहब एक बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूछो 5 साल 2002 तो 2007 कांग्रेस की सरकार से 1 यूनिट भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की थी। सिंधिया पर पलटवार करते हुए तरुण चुग ने पंजाब यूथ कांग्रेस पर तंज कसते हुए ड्रग्स के मुद्दे पर जवाब दिया है। अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया। शुक्रवार यानी 27 जनवरी को एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर में रैली करने जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। शुक्रवार को पंजाब के चुनावी रण में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। इस हफ्ते पंजाब में फिल्मी फ्राइडे के बजाय सियासी फ्राइडे चर्चा में रहेगा। दरअसल 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जालंधर में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शुक्रवार से पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ऐसे में सूबे की सियासत पूरी तरह उफान पर रहेगी। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी स्टार प्रचारक के तौर पर उतारने के संकेत दे रही है। राहुल जी 27 तारीख को आ रहे हैं। 27, 28, 29 को वो पंजाब में होंगे और कब घोषणा करनी है, कैसे करनी है, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। मनमोहन सिंह जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उन्होंने वादा किया है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वो निश्चित रूप से आएंगे। राहुल जी आ रहे हैं, लुधियाना में भी आने का प्रोग्राम है, जैसा जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आशा कुमारी जी बता रही थी। तो स्वाभाविक रूप से राहुल जी प्रचार करने आएंगे, सिद्धू जी प्रचार कर रहे हैं। उधर अमृतसर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूबे की अकाली बीजेपी सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। सिंधिया पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए लगे हाथ नसीहत भी दे डाली। चारों तरफ अगर हम देखें तो चाहे ट्रांसपोर्ट का स्कैम हो, चाहे नौकरियों का स्कैम हो, चाहे जमीन घोटालों का स्कैम हो, चाहे ड्रग्स का स्कैम हो, एक ऐसा भ्रष्टाचार का वातावरण आज उत्पन्न हो चुका है। भ्रष्टाचार के बारे में जिहड़ी गल सिंधिया साहब कर रहे ने, छज ते बोले छानी की बोले। जिस प्रधानमंत्री दे 5 साल 10 साल पूरे एहो ही आरोप लगते रहे कि 2G स्कैम किया, कोला घोटाला किया। आउं लगता जी जिस सरकार दे टाइम सोनिया गांधी मनमोहन सिंह ने देश के खजाने नूं लुटिया, अज उहदे प्रतिनिधि आके भ्रष्टाचार पूरी गल करते ने, जचदी नहीं। कांग्रेस मौजूदा सरकार पर करप्शन के आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी यूपीए सरकार के कारनामे गिनाने में लगी है। अमृतसर से राजन गोसाई, सी मीडिया।